Lecture 9 Financial Considerations. कंटेंट फॉर द कोर्स। ये सभी कंटेंट हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आने वाले अपनी वीडियोस में। व्हाट दिस कोर्स वुड इंक्लूड। इस कोर्स में आपको 20 वीडियो लेसन्स हैं और हर वीडियो लेसन के साथ एक आपको केस स्टडी भी दी गई है जिससे आप और अच्छे से उस टॉपिक को समझ पाएंगे। Contents for Session 9. In this session, we will discuss about financial statements, managing cash flows, and sources of finance, that is, debt and equity. Introduction. Finance is the lifeblood of a business enterprise or an organization. Also, the success and failure of the new venture to a great extent remain dependent on financial planning. Therefore, it is very important for every business entrepreneur to draw up a financial plan at a starting stage of his new business or venture. Under financial consideration, we will study financial statement. There are 4 points that we are going to cover in this PPT under financial statement, that is balance sheet, income statement, cash flow statement, and profit and loss account. Now let's discuss balance sheet. Balance sheet equal to statement of financial position. Now what is balance sheet? Balance sheet is a financial statement that contains detail of the company, assets or liability at a specific point in time. Basically, balance sheet gives the financial position of the company. It shows the asset and liability of the company. It also shows how the business is being funded. There are 3 components of balance sheet. That is, resources used by the company in order to run the business. Then, liability, debts that the company has. Third, owner's equity, part of assets belong to the owners. In simple words, if we read the balance sheet, it gives the clarity and accuracy. Investors carry out analysis of balance sheet to check the performance of the company. Let's move to the next topic, that is income statement. The income statement show a firm revenue or expenses and taxes associated with those expenses for some financial period, where the balance sheet may be through of in terms of the left-right orientation previously discussed. The income statement would be through the top-down term. A basic overview of income statement items show how a manufacturing company might present an income statement. Income statements for other company may appear to be slightly different, but in general, the construction would be the same. Next is cash flow statement. Cash flow statement or analysis is useful for short-run planning. A historical analysis of cash flow provides insight to prepare reliable cash flow projection for the immediate future and make sustainable arrangement. Cash flow statements show inflow and outflow. That is, inflow of source of cash, positive cash flow, or outflow is use of cash, that is negative cash flow during the period, and the difference being net cash flow. Let's discuss profit and loss account. Profit and loss statement is an important financial statement that reflects company performance and financial standing over a period of time. This statement summarizes all the income and expenditure over the desired time period.
It gives the result as net loss or net profit. It can be prepared monthly, quarterly, as well as annually. Now let's discuss why profit and loss statement is important. First is enable decision making. A profit and loss statement is extremely important for business to make decision. Second, meeting statutory obligations. The statements help in arriving at figure required for filing taxes or returns. Third, funding requirement formalities. This statement helps the company to borrow funds as it helps lenders to gauge earning potential of the borrower. Let's discuss cash flow management. Maintaining a healthy cash flow is one of the most important aspects of running any small business. Key to success in the area is the management of inflows and outflows, which can be monitored using a financial software package. There are 7 steps to consider for cash flow management. First, working on credit. Ensure that you work on your credits to keep the cash flow clear. Second, forecasting. By forecasting your spending beforehand can help. Stock keeping. Keep distance between buying and making the payment. Fourth, stock control. Overstocking can run your cash flow. Fifth, unnecessary spending. Unchecked spending can be dangerous for your cash flow. Sixth, cost cutting. Control your spending on things that is not required. Last, managing account. Hire an accounting company to manage your account daily. So these are the very important 7 steps that you must consider for your cash flow management. Let's discuss the sources of finance, debt and equity. In order to prepare an estimate of capital requirement, various types of expenditure that should be taken into account are promotion and formation expenses, expenses for purchasing fixed assets, expenses for expansion of business, expenses for current assets, and cost of raising capital, etc. First point is creation of internal resources. This source through mobilization is large size concern, is little used in small establishments. This source comprises provision for taxation, provision for depreciation and reserve fund. The newly started enterprise cannot possibly use this source. Second point is taking public deposits. The large undertaking with the object of pursuing middle term capital, taking up term deposit from the public. The public can given deposit certificate. Through it is one of the main source of financing for established concern. It is not at all possible to take up the opportunity for new establishments. Third, financing by commercial bank. The commercial banks have nowadays met the short-term financial requirement with the supply of finance to the companies. The commercial banks have been supplying short-term capital through discounting of bills, cash credits, and advance payment. Fourth, financing by financial institution. For example, it includes IFC, IDBI, ICICI, SFC, SIDBI, ECT. Fifth is personal finance. In case of starting a new business, the entrepreneur provides himself for supplying capital by investing his own or family saving. These includes cash and personal assets that can be converted into cash. Last source of finance is government grants. In specific section,
there is a provision for grant from government to be financed to new entrepreneur. Government usually provide accurate finance as grant and subsidy to those cases which are recognized as a priority sectors. Thus, by means of grant and subsidy from government, capital is supplied to the entrepreneur. माना शहर में तुम्हारा वो तरक्की वाला मकान है, मगर गांव में भी गरीबों के जीवन में भी सुकून और शान है। ना किसी के ख्वाबों में मिलेंगे, ना किसी के अरमानों में मिलेंगे, हम हमेशा दुकान में मिलेंगे। गर्मी, सर्दी, बरसात यूं ही गुजर जाती है, नींद भी पूरी होती नहीं कि रात गुजर जाती है। होली, दिवाली, नवरात्रि, 31 पर भी हम काम पर मिलेंगे। तुम आ जाना दोस्त, हम हमेशा दुकान में मिलेंगे। लोगों ने है इसे संवारा, आगे बढ़ने लगा है देश हमारा। कपड़े, खिलौने और अचार, खुलने लगे हैं छोटे व्यापार। 2 शब्दों का रह गया है काम, करेंगे उधार या देंगे दाम। गांवों की बात है निराली, यहाँ से ना कोई जाए खाली। उत्पादों के साथ देते हैं आशीष, इनकी ना कोई कर पाए रीस। आइए बढ़ाते हैं इनका सम्मान, कुछ देकर और लेकर ज्ञान। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं ऐसे ही पंजाब के गांव की गलियों में। यहाँ पर हम आपको रूबरू करवाएंगे कुछ लोगों से, उनके व्यापार से और उनके जीवन व्यतीत करने के तरीकों से। आप अपने बारे में बताइए, आप कौन, मतलब हाँ जी, कहाँ से रहते हो? मेरा नाम किरण है जी। हाँ मैं जी। ठोकर कलां गाँव में रहने वाली हूँ और मैं अपना सिलाई का काम करती हूँ और पार्लर का काम करती हूँ। और आपने ये जर्नी कैसे शुरू की अपने काम करने की? बस मैंने अपने बच्चे पालने के लिए, अपना घर परिवार चलाने के लिए ये सब कुछ कर रही हूँ। मैं अपना परिवार पालने के लिए ये सब कुछ अपना काम themselves हूँ, अपना काम आप कर रही हूँ। आपने इस बिजनेस को चलाने के लिए पैसे कहाँ से मैनेज किए? पहले मैं अपने काम चलाने के लिए थोड़ा सा लोन लिया था। लोन लेकर मैंने अपनी मशीन खरीदी, ओवरलॉक खरीदी और फिर मैं अपना काम शुरू कर दिया। और जो इससे इनकम होती है मैम, वो आप कहाँ जमा कराते हैं? बैंक में या अपने घर परिवार चलाती हूँ और थोड़ा सा बच्चे पढ़ा लेती हूँ और बच्चे की पढ़ाई चल रही है, मेरा घर परिवार चल रहा है, राशन पानी सब कुछ इसी की ओर से। आपकी इस बिजनेस में और कौन कौन मदद करता है? कोई और है या आप अकेले ही संभाल? मैं सब कुछ अकेले ही संभाल रही हूँ। आपको ये बिजनेस करने के लिए किसने प्रेरित किया? कुछ का पहले शौक था मुझे जो काम करने का और फिर मेरी मजबूरी हो गई, फिर मैं अपना काम शुरू कर दिया। जी, बिजनेस से आपके साथ कौन से प्रेरित हुई? क्या प्रेरित हुआ? और बहुत कुछ। क्या क्या परिवर्तन आया आपकी लाइफ में इससे? लाइफ में परिवर्तन आया, मैं अपना घर परिवार और अच्छी तरह थोड़ी शौक से इजीली कर रही हूँ। ऐसा है कि मैं अपने बच्चे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। इस बिजनेस के अलावा कोई और बिजनेस भी करती हैं? हाँ जी, मैं और पार्लर का काम कर रही हूँ, मेरा खुद का पार्लर चल रहा है। क्या हम आपका पार्लर देख सकते हैं? हाँ जी, देख सकते हैं। प्लीज दिखा दो। मैम, आपने ये दोनों बिजनेस एक साथ ही शुरू किए थे? नहीं, थोड़े से डिस्टेंस के साथ। कैसे, मतलब आपको? पहले सिलाई का काम शुरू किया और थोड़ी देर बाद में पार्लर का काम शुरू कर लिया। उससे वही पैसा आपने इसमें इन्वेस्ट किया? हाँ जी, हाँ जी। वो सिलाई का जब पैसा आने लगा वो मैं फिर वो पार्लर का काम शुरू कर लिया, इसलिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट हो गई और आगे आगे डेवलपमेंट जैसे भी होती गई मैं अपने पार्लर का काम बढ़ाती चली गई। इससे अभी आपको बहुत फायदा हो रहा है? हाँ जी, हाँ जी, बहुत फायदा हो रहा है। मैं अपना घर परिवार बड़े अच्छी तरह और शौक से इजीली चला रही हूँ। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। आपने ये बिजनेस कब शुरू किया था? बेटा पहले मेरे डैडी करते थे, ठीक है।
मतलब अपना आप कैसे भी अपने खातों को संभालते हो, क्या क्या लिखते हो उसमें? बस जो उधार चलते हैं। जितनी भी कमाई होती है आपकी दुकान में, उससे आपके घर का गुजारा अच्छे से हो जाता है? बस टाइम पास हो गया। ठीक है। तो आप इस दुकान के साथ साथ और क्या करते हो? जो आपको इनकम होती है वो आप बैंक वगैरह में सेविंग वगैरह करते हो? घर पे कब से चला रहे हो? हाँ बस आए जी, वो देखिए बेला का टाइम नहीं निकलता जी, करी जाने बस 8-9 साल हो गए तो काम की। आप ये बिजनेस सिर्फ ये बिजनेस चलाते हो, इसके साथ और भी कोई काम करते हो? बस सिलाइयाँ टप्पा जा माड़ा मोटे कर लेने हैं। ठीक है, बुनाई वगैरह। ठीक है। और जो आपको इनकम वगैरह होती है उसके लिए आप कोई आपने पेपर वगैरह लगाया लिखने के लिए? नहीं। कोई उधार वाला होता है, वो कैसे लिखते हो? उधार तो वही पर लिखना ही पड़ता है। जो आपको इनकम होती है वो आप बैंक वगैरह में खर्चा भी नहीं निकलता। ठीक है। और आपकी आगे कोई प्लानिंग है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने? नहीं, कुछ नहीं, पास के लिए बस ही मजा करेंगे, बस वही गल को बेला ना, बस वही गल कर दिया, तेरा काम कर रहा। फिर इस बिजनेस को शुरू करने में आपने इन्वेस्टमेंट कहाँ से ली, मतलब पैसे का इंतजाम कैसे किया आपने? नहीं, कहीं से नहीं लिया हमने, तो घर से। हमारी एजेंसी है वो क्या काम करते हैं? किराना स्टोर। ठीक है। आपका इस बिजनेस को चलाने में किसी और ने साथ दिया था आपका? नहीं, बिजनेस खोलने के बाद कड्डी जाने अपनी लाइफ में क्या क्या चेंजेस लग रहे हैं बिजनेस शुरू करने के बाद? बढ़िया, अगर जरूरत है किसी के हाथ नहीं जाते, अपना खुद कमाते हैं, खुद बरत लेते हैं। भी किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं आती। हमको लोड है, हम घर पर ही ले लेते हैं, जेंट्स को नहीं पता रहता। जो उनको खाई नहीं आती है कि भी हमने पैसा देना है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप ये बुनाई का काम अपनी खुशी से करते हैं? हाँ जी, खुशी से करते हैं। ये बुनाई आप कर बेचते भी हैं या अपने घर के लिए बेचते भी हैं, बच्चों के लिए भी बुनते हैं। और आपको जो इससे कमाई होती है, आप वो बैंक वगैरह में सेविंग करते हैं या घर पे? घर में बच्चों के काम आ जाते हैं। ठीक है। कितनी कमाई हो जाती है आपकी इन सब में से? महीने की हो जाती है 2-3। तो कितना टाइम हो गया आपको ये करते हुए? 10-12 साल हो गए। आप एक अगर ये स्टार्ट करेंगे तो कितना टाइम लगता है एक स्वेटर बनाने में? आपने ये काम किसी से सीखा था? हाँ जी, मम्मी वगैरह करते थे। वो भी बेचते थे आगे? नहीं, वो वैसे हमारे लिए। क्या आप हमें वो ये दिखा सकते हैं? अजे नहीं जी, अजे तो अज पहले दिन ही हसकाई है मिट्टी। एक बर्तन को बनाने में कितना टाइम लगता है? एक बर्तन बनाने लिए एक बार तो ला लो जी 20-25 लाने असीं दिन। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੱਚਾ ਹੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਚਾ ਢਾਂਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੁੱਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ। एक आप कितने का सेल करते हो? ਇਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜੀ 100 ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਾਲਣ ਬੂਲਣ ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਭੱਠੀ ਆ ਭੱਠੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ पाथियाँ वगैरह ये पाथियाँ भी मेरे ख्याल से 4-5 रुपये में एक पाथी मिलती है। जितनी आप कमाई करते हो उसके साथ आपका घर का गुजारा हो जाता है? बड़ी मुश्किल नाल ही होता जी। मतलब एक दा काम कार घट गए। हुण पहला तो हुंदा सी हरेक बर्तन लेके जांदा सी, हरेक क्यों हरेक ही घड़े दा पानी पीना सी उन्होंने। हुण फ्रीजर वगैरह आर वगैरह घर लगे ने, इस करके घट हुंदा है। मतलब जिन्ना भी लगता चल जिन्ना चिकर चलता उन्ना चिकर करते हैं। कितना टाइम हो गया काम करते? सानू किता पक्की किता ही है। पहले मेरे दादा जी करते, फिर मेरे फादर साहब करते सी, हुण 5-6 साल का मैं लगे करन। आप इसके साथ कोई और काम भी करते हो? बस आई है जी, फादर साहब इतने हुण दुकान है, इतने बैठे रहंदे आ, या कोई जानवर जूनवर पाल लेने, कोई मज्झ वगैरह। पहले
बारे में और अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताइए। सबसे ज्यादा कौन से अकाउंट ओपन होते हैं यहाँ पे? मेल लेडीज जेंट्स कौन अपने खाते ज्यादा खुलवाते हैं? 50-50 इंटरेस्ट रेट क्या है लोन का? अलग-अलग टेन्योर के हिसाब से हमारे पास एग्रीकल्चर लोन है, उसमें क्रॉप लोन है, केसीसी 7% रेट है, उसका 3% सब्सिडी है। सर आप CRR SLR प्रिपेयर करते हो? वो हमारे एक लेवल पे होते हैं, 5 लेवल पे। सर कोई और स्कीम जो बैंक अवेलेबल करता हो कस्टमर्स को? सभी स्कीम उनके बारे में आप थोड़ा सा ब्रीफ किस चीज की लोन की? जो लोन की थोड़ी स्कीम्स होती हैं, कोई आप स्मॉल बिजनेस को लोन देते हो उसके लिए आप हमें कुछ वगैरह बता दें। हाउस लोन है, कार लोन है, एजुकेशन है, जो गाँव में लेडीज के ग्रुप बना कर सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में कितनी लेडीज? आप सर FD वगैरह भी प्रिपेयर करते होंगे, उस पर कितना इंटरेस्ट वगैरह है? 7%। एक साल के लिए 6.75, इससे ज़्यादा दिया है तो उसके 7.25। और फिर आप बच्चों को कोई बैंक के बारे में कोई एक्स्ट्रा जानकारी देना चाहेंगे? जो बच्चे टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, जैसे उन्होंने आगे बैंक में आना है, उनको क्या किस चीज़ पर अपना फोकस करना चाहिए? बैंक में मेन इंग्लिश, मैथ, जनरल नॉलेज और रीजनिंग, इन चारों में। और आप सरकार द्वारा आपको इम्प्रूवमेंट करते हैं बैंक में, भी कुछ चेंज करना चाहिए बैंक में? चाहिए टेक्नोलॉजी कम होना चाहिए। सर अभी भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे होंगे आप, जैसे कंप्यूटर्स हैं, तो कितने % तक इम्प्रूव हुआ है? नहीं, इम्प्रूव तो बहुत हुआ है, पहले तो काफी हो गया, तो इसकी और जरूरत है। सर आप पेपर वर्क के लिए करते हो, जैसे कंप्यूटर वाली ट्रांजेक्शन कौन सी करते हो, आप पेपर में कौन सी करते हो? पेपर में हमारे जो लोन डॉक्यूमेंट है वो सभी पेपर पे है, अकाउंट ओपनिंग पेपर पे है, दूसरे ट्रांजेक्शन है जो कैश वाली है वो ऑनलाइन भी है, विड्रॉल फॉर्म में बोलते जैसे जब कोविड आया था तो सभी ने मुश्किलों का सामना करना पड़ा, तो आपने कैसे अपने बैंक को मैनेज किया? हम बस कौन सा आदमी अंदर आते थे, सभी की बात लगा होता था, हमारे लिए सैनिटाइज करते थे। कस्टमर उस टाइम पे आते जाते थे? उस समय तो ज़्यादा आते थे। और वुमेन्स के रिगार्डिंग कोई बैंक के लिए ऐसा किया सर वो बिजनेस शुरू करती है उस बैंक लोन से या कोई भी काम शुरू करती है? पूरी अपना घर में जो काम करते हैं उसके लिए। सर सभी बैंक में हो गई है सेल्फ हेल्प? इसके बारे में थोड़ा सेल्फ हेल्प ग्रुप आप कितना लोन के बारे में, कितना लोन, क्या प्रोसीजर होता है? उसमें पहले वो वर्क बनाते हैं, उसका हमारे पास लगता होगा कितना? मैक्सिमम अमाउंट कितना देता है? तो हमने देखा और सीखा कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हमारा जज्बा, हमारी उम्मीद और हमारी लगन उसे ऊंचाई पे ले ही जाती है। साथ ही हमने महिलाओं को बाकमाल तरीके से उद्योग के साथ साथ परिवार की जिम्मेदारी बखूबी निभाते देखा। जी हाँ, ये महिला सशक्तिकरण की ही तो एक उम्दा मिसाल है, जहाँ एक तरफ
शहर और बड़ी बड़ी कंपनियां भारत की आर्थिक अवस्था में बढ़ोतरी कर रही हैं, वहां ही छोटे गांवों के व्यापारों का योगदान बेहद अहम है। हम इन्हें ना सिर्फ अपनाते हैं बल्कि इन्हें सलाम भी